Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So we are back again with a new video, and today's video is going to be the discussion of the sample question paper of class 10 IT 402 of the session 2023-24 released by CBSE. Other subjects papers have been already released by CBSE, and information technology paper sample question paper has been released a few days back. So the duration of the paper is of 2 hours and the maximum marks covered by the paper is 50 marks theoretical paper and 50 marks practical paper. So blueprint we have already discussed. I'll provide you the link in the description box. From there you can check out the blueprint also. So we will start today here with the sample question paper which is given here, and let us see the general instructions which are shown here. First of all, your paper consists of total 21 questions which are divided into two sections, Section A and Section B. Section A basically consists of our objective type questions of 24 marks, and Section B consists of our subjective type questions of 26 marks. Okay, now objective type questions are from employability skills chapter as well as employability skills part as well as your subject specific skills part. In total 21 questions are there, जिसमें से candidate has to give 15 questions answer in the allotted time of 2 hours. Now this 24 marks is from part A as well as part B, that is employability skills as well as subject specific skills. Total there will be 5 questions and each question has 6 parts. In the first question you have to attempt any 4 out of the given 6 question from the employability skills, and in rest of the question, that is from question number 2 to 5, you have to attempt any 5 from the given 6 question from the subject specific skills. Same way section B में आपके पास जो questions रहेंगे that will be from employability skills as well as the subject specific skills. तो चलिए move on करते हैं अपने section A objective type questions पे. इसी के साथ साथ CBSE ने आपको प्रोवाइड किया है that is the marking scheme of this paper which you can see here, and in this they have given the answers to these questions, all the theoretical as well as the objective type questions. In this sample paper and the marking scheme they have also provided कि बेसिकली आपके जो आंसर्स हैं वो कहाँ से कौन सी बुक में से लिए गए हैं. बेसिकली ये आपका NCERT और CBSE और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के स्टडी मटेरियल और NCERT की बुक से लिए गए हैं. दे हैव स्पेसिफाइड द चैप्टर नंबर और द यूनिट ऑल्सो, द पेज नंबर एंड द मार्किंग ऑल्सो. So let us understand first the section A objective type questions. Question number 1 में the student has to answer any 4 out of the given 6 questions on the employability skills which carry 4 marks. And so here we are having the first part. When it is difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views, it means there is a dash. जब कोई पर्सन को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज द पर्सन इज नॉट विलिंग टू टॉक, बात करने की इच्छा नहीं है या नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज, तो वो क्या होता है. अब 4 बैरियर्स के ऑप्शन है आपके पास, कल्चरल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर और लैंग्वेज बैरियर. बेसिकली इस केस में होता है स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल बैरियर, दैट इज द बी ऑप्शन. कल्चरल बैरियर तब होता है जब कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, एक पर्सन दूसरे कल्चर से है, दूसरा पर्सन किसी दूसरे कल्चर से है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. इंटरपर्सन मतलब आपस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक द पर्सन इज फीलिंग टायर्ड और नॉट एबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स और व्यूज, दैट वन. Physical barrier is related to, you can say, like there is a network issue or there is some noise around you, that is a physical barrier. And language barrier होता है जब language से related problem है, दो persons आपस में बात कर रहे हैं लेकिन language उनकी common नहीं है. So according to the given question the answer is option number B, interpersonal barrier. ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि कार्तिक्स कंप्यूटर वाज रनिंग वेरी स्लो, हैंग्स एंड ऑफन रीस्टार्ट्स. ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड टेंस. ही वाज वर्किंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट. कार्तिक्स फ्रेंड्स गेव हिम द फॉलोइंग सजेशन, आइडेंटिफाई हु हैज गिवन हिम अ जेन्युइन सजेशन. कार्तिक का कंप्यूटर बहुत स्लो है, हैंग हो जाता है, रीस्टार्ट भी हो जाता है. ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड टेंस्ड एंड उसके फ्रेंड्स ने उसे कुछ सजेशंस दिए, तो आप बताइए कि किसने जेन्युइन सजेशन दिया. अब सिस्टम हमारा स्लो होना, हैंग होना, रीस्टार्ट होना, ये सिम्टम्स हैं वायरस की, तो उसके लिए क्या करना चाहिए. राधा ने बोला कि रीस्टार्ट योर मशीन. ईशान टोल्ड की इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट इट. अमर सेड कि डोंट यूज पेन ड्राइव एंड सैम सेड इंस्टॉल फ्री एंटीवायरस फ्रॉम द नेट.
So genuine suggestion is given by Ishan that is install reliable antivirus software and update. बिकॉज रीस्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पेन ड्राइव ना यूज़ करें, बट अगर ऑलरेडी सिस्टम में वायरस है दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. एंड फ्री एंटीवायरस अगर हम नेट से लेते हैं तो इट इज़ नॉट श्योरिटी कि दैट विल बी सेफ. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Third part says dash refers to focusing the human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situations. जब हम ह्यूमन एफर्ट्स एज ह्यूमंस जब हम एफर्ट्स लगाते हैं ताकि हमारी माइंड और बॉडी हेल्दी रहे और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल कर सकें. सो व्हाट इज दैट नोन एज? सेल्फ मोटिवेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन. दैट इज नोन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट. सेल्फ मोटिवेशन होता है बिना किसी के कहे काम को करना. सेल्फ अवेयरनेस होता है वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता होना. और सेल्फ रेगुलेशन होता है टू हैव कंट्रोल ऑन द इमोशंस. तो यहाँ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की बात की गई है, सो द आंसर विल बी स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है, यू कैन सी द आंसर्स हियर व्हिच आर गिवन हियर फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट. हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीड विद क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस. अगर हमें खुद से ही सेल्फ बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है तो इस वजह से वी कैन हैव एंजाइटी, वी कैन हैव स्ट्रेस इन आवर माइंड. तो उससे रिलेटेड कौन सा स्ट्रेस होगा? दैट विल बी मेंटल स्ट्रेस. ओके, फिजिकल स्ट्रेस होता है रिलेटेड टू हार्म ऑन द बॉडी. इमोशनल स्ट्रेस आप कह सकते हैं जैसे कि एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो वी फील इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट. और फाइनेंशियल स्ट्रेस तब होता है जब मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी मेंटल. Fifth part says which of the following is or are a myth about entrepreneurship. Entrepreneurship से related इसमें myth कौन सा है? Myth मतलब rumor, false belief. Need a lot of money, must have a great idea, should know everything about business or all of these. तो ये तीनों ही myth है. ना तो हमें ज़्यादा मनी चाहिए, ना ही हमेशा ग्रेट आइडिया चाहिए बिकॉज एग्जिस्टिंग आइडिया से भी बिजनेस सेटअप किया जा सकता है. एंड द पर्सन शुड नो एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, इट कैन बी. सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को बनाया है? दैट इज फ्रॉम द ग्रीन स्किल्स चैप्टर. यूनिसेफ, लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. SDGs 17 है हमारे. क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है. सो द ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड नेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ गोल्स आर 70. So you can see here the answers which are given here. We have also marked these answer. Along with that आपके पास यहाँ पे पेज नंबर्स हैं, आप इस पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, now we move on to the next part, that is question number 2. अब क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 5 में भी स्टूडेंट्स आपके 6 पार्ट्स हैं हर एक में, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में से आएंगे, जिसमें आपके 4 यूनिट हैं: डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, electronic spreadsheet advanced, database management system and web applications and security. The first part of question 2 says which one is not the tab of the insert index table window of writer document. Insert index table जो हमारी विंडो होती है राइटर डॉक्यूमेंट में, जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं, उसमें कुछ टैब्स होते हैं. तो इनमें से कौन सा टैब उसमें नहीं है? एंट्रीज, बैकग्राउंड, स्टाइल, रो. इसके लिए हम चलते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर पे और यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में यू हैव द ऑप्शन ऑफ इंडेक्सेस एंड टेबल्स. जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे यू विल सी दिस वन मोर ऑप्शन, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, एंड हियर यू कैन सी these 5 tabs: index table, entries, styles, columns, background. So we can see here that according to the given option the row tab is not there. So the correct answer is row. Second part is in the custom styles, each dash field on the structure line represents a blank space in a document. जब हम अपने styles बनाते हैं ओपन ऑफिस राइटर में तो जो स्ट्रक्चर लाइन है, कौन सी फील्ड होती है स्ट्रक्चर लाइन पे जो डॉक्यूमेंट में ब्लैंक स्पेस को शो करती है? ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और येलो. द आंसर इज व्हाइट. एज यू कैन गो टू द NCERT PDF एंड फ्रॉम हियर अगर आप यहाँ से जाते हैं एंट्रीज टैब पे, क्योंकि एंट्रीज टैब में होते ही हमारी स्ट्रक्चर लाइन. ठीक है, यूजिंग द एंट्रीज टैब, इन दिस यू कैन सी हियर it is written here each white field on the structure line represents a blank space given on पेज नंबर 34. और मार्किंग स्कीम में अगर आप देखें तो यहाँ पेज में मिस्टेक है, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 34 और यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे मेंशन है दैट इज ब्लैक.
लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में आपका आंसर आएगा वाइट। ठीक है, सो द आंसर इज हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाइट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा अपने स्ट्रक्चर लाइन बेसिकली है क्या, यहाँ पे देखिए एंट्रीज टैब में ये जो स्ट्रक्चर लाइन है इसमें जो वाइट है, वाइट फील्ड जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ ब्लैंक स्पेस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। Third part, Saurabh has made an advertisement in digital document. He is facing difficulty in positioning the images within the text. Suggest him how he can adjust the image. सौरभ ने एक एडवर्टीजमेंट बनाई है ओपन ऑफिस राइटर में और उसे इमेज के साथ, टेक्स्ट के साथ इमेज को पोजीशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज, रैप टेक्स्ट, क्रॉप, अलाइनमेंट और लेआउट। तो इसका आंसर होगा आपका रैप टेक्स्ट, क्योंकि ये एक ऐसी फीचर है जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट के साथ इमेज को पोजीशन कर सकते हैं। क्रॉप में बेसिकली होता है कि पिक्चर की कटिंग से रिलेटेड होता है, ट्रिमिंग द पिक्चर। अलाइनमेंट होता है पिक्चर को पोजीशन करना, और लेआउट रहता है हमारा उसका कैसा लेआउट है, मतलब बॉर्डर वगैरह लगाना है या एनीथिंग लाइक दैट। तो इमेज को टेक्स्ट के साथ पोजीशन करना है तो ऑप्शन इज रैप टेक्स्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट स्टोर डेटा इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं, जो डेटा को स्टोर करता है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, मान लीजिए मुझे एक मेल किसी को, डेटा किसी को सेंड करना है, लेटर है मान लीजिए, बहुत सारे रेसिपिएंट्स को अगर हमें सेंड करना है तो वहाँ पे हर एक पर्सन के जो डिटेल्स होंगी वो एक टेबल में मेंटेन होती हैं एंड दैट टेबल इज नोन एज डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट होता है वो कंटेंट जो सबके लिए सेम रहता है। ठीक है, सो द आंसर विल बी डेटा सोर्स, ऑप्शन ए। फिफ्थ पार्ट सेज टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज द डैश ऑप्शन इज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी इमेज के कंट्रास्ट को इंक्रीज करना हो, कंट्रास्ट क्या होता है, जैसे कि इमेज में दो कलर्स हैं डार्क एंड लाइट, तो वहाँ पे वो जो कलर्स हैं बहुत शार्पली शो हो, कंट्रास्ट को इंक्रीज करते हैं। कम शो हो यानी कि इतना शार्पली शो ना हो, इतनी मिक्सिंग का पता ना लगे, तो उस केस में हम कंट्रास्ट को कम करते हैं। तो इमेज के कंट्रास्ट को इंक्रीज करना हो तो शार्पन ऑप्शन होता है, इमेज फिल्टर है ये, और अगर आपको डिक्रीज करना हो तो स्मूथ ऑप्शन होता है। ठीक है, एजिंग जो होता है वो ये दिखाता है कि एज के साथ पिक्चर कैसे, उसमें क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और मोज़ैक का मतलब होता है ब्लर होते जाना। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक पिक्चर ले लूँ, जैसे कि हमने यहाँ से एक पिक्चर ले ली ऑफ दिस कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ही आप पिक्चर यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपके पास ये टूल बार आता है, पिक्चर टूल बार, इसमें इमेज के फिल्टर्स होते हैं। तो दिस इज द ऑप्शन ऑफ स्मूथ। ठीक है, कंट्रास्ट डिक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज द ऑप्शन ऑफ शार्पन, कंट्रास्ट इंक्रीज होता है। एंड ये आपका एजिंग का जो होता है, इससे ये रिलीफ है। एजिंग का एक ऑप्शन होता है जिससे ये दिखाता है कि एज के साथ साथ, मतलब कि अगर हम उसकी परसेंटेज में कुछ भी चेंजेस करें तो उसमें क्या क्या चेंज, मतलब किस तरह से पिक्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज द एजिंग इफेक्ट। एंड जो मोज़ैक इफेक्ट है उसमें आपकी जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाती है। आप सपोज यहाँ से विड्थ और हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, सो दिस विल बिकम अ लिटिल ब्लरी। ठीक है, दिस इज द मोज़ैक इफेक्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इज शार्पन। Sixth part says Dash provides internet access by transmitting digital data over the wires of a local telephone network. क्या चीज़ आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराती है ताकि आप डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट कर सकें लोकल टेलीफोन नेटवर्क की वायर के ऊपर। ISP, DSL, डायल अप कनेक्शन या फिर मॉडम। ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो कंपनी जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज दे रही है। DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें यही चीज़ होती है कि वायर्स के थ्रू लोकल टेलीफोन नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है जिससे इंटरनेट का एक्सेस आता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डायल अप कनेक्शन बहुत स्लो था जो सबसे पहले यूज़ किया जाता था। एंड मॉडम जो है वो हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी जो इनके आंसर्स हैं ये आपको दे रखे हैं। इसमें जो सेकेंड पार्ट का आंसर है उसका आना चाहिए वाइट, बाकी आंसर्स इसमें आपके ठीक है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, ऑल द 6 पार्ट्स। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको 6 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं। द फर्स्ट पार्ट सेज डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू मिनिमाइज द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट वुड डिफाइन इन अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट में अगर हमें अपना जो रिजल्ट है वो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके चाहिए हो तो हम कौन सी फीचर का यूज करते हैं, गोल सीक, सिनेरियो, सॉल्वर और सब टोटल।
से स्टूडेंट्स गोल सीट चाहिए होता है कि जब हमें आउटपुट पता हो और हमें एक इनपुट निकालना हो। सिनेरियो में हम केसेस बनाते हैं, डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट निकलता है। और जो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर आपका सॉल्वर है। कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड सब टोटल का काम होता है डेटा को ग्रुप करना, ठीक है। सो दिस इज हाउ द आंसर इज गिवन। और यहाँ पे इसका जो आंसर है दैट इज गिवन एज सिनेरियो। यहाँ पे इसका आंसर आपका सॉल्वर होगा। यू कैन चेक इट ऑन पेज नंबर गिवन ऑन इन द एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरह से सॉल्वर डाल के चेक कर सकते हो। एंड देन यू कैन चेक दिस थिंग वेयर इट इज क्लियरली रिटन कि सॉल्वर का क्या काम होता है, ठीक है। तो सॉल्वर इज बेसिकली यूज्ड टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट बेस्ड अपॉन द कंडीशंस गिवन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ दिस वन। See, it is written here, it is specifically designed to maximize or minimize the result according to a set of rules that you define, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा C part, that is solver. Now we move to the second part of third question. Sahil and his partners have created a list of their company employees in one of the spreadsheet in the office. Now the rest of the task they want to complete from home. So which option they should use to access the same spreadsheet from home? साहिल ने एक लिस्ट क्रिएट की है स्प्रेडशीट में अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ की। अब वही काम, जितना काम बचा है वो घर से करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेम स्प्रेडशीट को एक्सेस करने के लिए विच ऑप्शन ही शुड यूज? कंसोलिडेट वर्कशीट, लिंक वर्कशीट, मर्ज वर्कशीट और लॉक वर्कशीट। सो इसके लिए हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स लिंक वर्कशीट। तो वर्कशीट को लिंक कर सकता है ताकि सेम शीट को वो एक्सेस कर सके, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट सेज डैश हेल्प्स टू क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन सेल्स while using the multiple operations. मल्टीपल ऑपरेशंस को यूज करते हुए सेल्स के बीच में रिलेशन को क्लैरिफाई करना हो तो कौन हेल्प करेगा? देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑपरेशंस हमारा एक ऐसा फीचर है जिसमें हम मल्टीपल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट निकाल सकते हैं। सो इनके बीच में अगर रिलेशन बनानी हो तो वहाँ पे होता है सॉल्वर। डिटेक्टिव कोई टर्म है नहीं। नेविगेशन का मतलब होता है मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे। और हाइपर लिंक बेसिकली होता है कि ऐसा लिंक जिसको क्लिक करने पे आप अगर उसी डॉक्यूमेंट के सेम पेज पे पहुंचे या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंचे। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आवर आंसर इज सॉल्वर। नाउ द फोर्थ पार्ट सेज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट व्हिच अ यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट्स। स्प्रेडशीट की किस पार्ट से यूजर बहुत सारी शीट्स को मैनेज कर सकता है? स्टेटस बार, शीट टैब, फॉर्मूला बार और वर्कशीट एरिया। तो मान लीजिए आप डिफरेंट शीट्स पे काम कर रहे हैं। यहाँ से हम फाइल में गए, न्यू में गए और यहाँ से हम स्प्रेडशीट में गए। तो डिफरेंट शीट पे काम करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स? शीट टैब होते हैं। ये नीचे स्टेटस बार है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है। देन आपका ये फॉर्मूला बार है, इसका भी इस चीज़ में कोई रोल नहीं है। और वर्क एरिया ये है जहाँ पे आप अपना काम करते हो। तो शीट्स को मैनेज करने का काम किसका है स्टूडेंट्स? शीट टैब का। सो द आंसर हियर विल बी शीट टैब, ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय डैश द शीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर शीट्स में चेंजेस को कैसे फाइंड आउट करता है? उनको चेंज करके, बाय कंपेयरिंग, बाय रीनेमिंग और एडिटिंग। दो शीट्स में डेटा सेम है या अलग अलग है, कैसे कंपेयर करना हो, देखने हो चेंजेस, तो वी कैन डू द कंपैरिजन ऑफ द शीट्स, दैट इज बाय कंपेयरिंग द शीट्स, ठीक है। सिक्स पार्ट पे आते हैं। एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट द लेफ्ट टैब इंडिकेट्स द डैश ऑफ द वर्कशीट इन अ वर्कबुक। हर वर्कशीट के नीचे जो लेफ्ट टैब होता है वो वर्कबुक की वर्कशीट की किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये शीट टैब्स हैं और उस पे हर टैब पे क्या लिखा है? उसका नेम लिखा है। सो द आंसर हियर विल बी नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन 6 पार्ट्स, इसमें आपको 6 में से 5 को अटेम्प्ट करना है। अब फर्स्ट पार्ट कहता है इट एनेबल्स अ यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज द डेटा डायरेक्टली इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। रिपोर्ट, क्वेरी, फॉर्म या डेटाबेस, इन चारों में से किसके थ्रू आप अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट में डेटा को देख सकते हो, एंटर कर सकते हो या चेंज कर सकते हो? रिपोर्ट, क्वेरी, फॉर्म या डेटाबेस। तो रिपोर्ट तो समराइज और प्रिंटेड फॉर्म होती है, क्वेरी कंडीशंस होती हैं या फिल्टर डेटा होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो इस केस में आंसर क्या होगा? फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्म की हेल्प से हम डेटा को देख भी सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ डेटाबेस। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स की रिलेशनशिप होती हैं। एक होती है 1 to 1, एक होती है 1 to many, many to 1 और एक होती है many to many, ठीक है। तो ऑप्शंस है 1, 3, 4, many, आंसर विल बी 3। फिर थर्ड पार्ट है अ रिलेशनल डेटाबेस यूजेस डैश कमांड्स
which is a standard user application that provides easy programming interface for database interaction. एक रिलेशनल डेटाबेस कौन सी कमांड्स का यूज करता है जिससे इजी इंटरफेस हो जाता है डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए? एक्सेस, पाइथन, एसक्यूएल प्रोटोकॉल. वेरी इजी क्वेश्चन. द आंसर इज एसक्यूएल विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये आपने डेटाबेस वाले चैप्टर में क्वेरीज इसके थ्रू करके भी देखी होंगी. ठीक है. Fourth part is Suraj wants to create a database for his clients. For this purpose, he needs to store the email IDs of the client. So what data type should he use to accomplish this purpose? सूरज को अपने क्लाइंट से एक डेटाबेस बनाना है जिसमें ईमेल आईडीज को स्टोर करना है. तो ईमेल आईडी में क्या होता है? लेटर्स होते हैं और आपके नंबर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं और थोड़ा बड़ा डेटा होता है. ठीक है. तो कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए? न्यूमेरिक, वारचर, बाइनरी या बुलियन? न्यूमेरिक तो सिर्फ नंबर्स के लिए होगा, वारचर नंबर्स एज वेल एज अल्फाबेट्स के लिए, बाइनरी फॉर द इमेज और द म्यूजिक फाइल्स एंड बुलियन फॉर द येस और नो वैल्यूज. तो यहाँ पे हम लेंगे इसके लिए वारचर. ठीक है. फिफ्थ इज गीत हैज रिटन अ एसक्यूएल क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू बट इट डजंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी यूजिंग द कीबोर्ड कीज. सजेस्ट हिम द शॉर्टकट की टू कंप्लीट द टास्क. एसक्यूएल व्यू में जो हम क्वेरी लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम एक तो हमारे पास रन क्वेरी का ऑप्शन होता है, लेकिन उसके अलावा वी आर आल्सो हैविंग अ शॉर्टकट की फॉर दैट वन. सो ऑप्शंस आर गिवन एज एंटर, कंट्रोल प्लस ई, स्पेस बार और F5. सो द करेक्ट आंसर इज F5. ठीक है. सिक्स पार्ट सेज अ टेबल कैन हैव ओनली डैश प्राइमरी की इन अ डेटाबेस. एक टेबल में, डेटाबेस में जो टेबल होता है उसमें प्राइमरी की कितनी हो सकती है? 1, 2, 3 या मैनी? हर एक टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है, यानी कि आपके टेबल का वो कॉलम जिसमें आप यूनिक वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं. ठीक है. और कोई भी वैल्यू आपकी ब्लैंक नहीं रहती, ना ही आपकी डुप्लीकेटेड रहती है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 5. अगेन इसमें आपको 6 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट पार्ट सेज डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हैविंग डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस. कौन सी की एक ऐसी एक्सेसिबिलिटी फीचर है जिसकी हेल्प से जिन लोगों को कीबोर्ड या माउस को यूज करने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों को हेल्प करती है? गाइड कीज, स्टिकी कीज, सीरियल कीज या होम कीज? तो गाइड कीज तो F&G होती है, इनका कोई रोल नहीं है उसमें. स्टिकी कीज जिनको आप एक्टिव करते हैं तो उससे जिन लोगों को सिर्फ कीबोर्ड को यूज करने में प्रॉब्लम है ना, वो हेल्प हो पाते हैं. जैसे कि कोई कंट्रोल प्लस से जो शॉर्टकट की है, 2 कीज एक साथ नहीं दबा पा रहा, तो स्टिकी कीज ऑन होने से जो मॉडिफायर कीज होती हैं आपकी शिफ्ट या कंट्रोल, वो एक्टिव हो जाती हैं और दूसरी की को जब तक आप प्रेस करते हैं तब तक वो एक्टिव रहती हैं. ठीक है. लेकिन जिन लोगों को कीबोर्ड और माउस दोनों को यूज करने में प्रॉब्लम है उनके लिए हमारे पास सीरियल कीज है. ठीक है. सीरियल कीज के थ्रू जब आप इनको ऑन कर देते हैं तो इनपुट जाता है पफ्ड और सिप डिवाइस से. जो एक डिवाइसेस क्या होते हैं, आपके माउथ से एक ट्यूब अटैच होती है और वो वायर्स आपकी सीपीयू के पोर्ट में जाती हैं जिसके थ्रू इनपुट जाता है. एंड इट इज हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू यूज द कीबोर्ड और द माउस एंड द माउस. ठीक है. और होम कीज भी नहीं होंगी. होम कीज ऐसे हमारी होती है ASTF, JKL, सेमीकॉलन, लेकिन वो इस केस में यूज नहीं होती. ठीक है. Second part says Anisha is a wildlife photographer. She wants to create her website where she can update the pictures and discuss about different events, reviews, announcement, news, etc. Suggest her a suitable option to complete the task. अनिशा एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है. वो चाहती है कि वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करे जहाँ पे वो अपने पिक्चर्स को अपडेट कर सके और डिफरेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कशन कर सके. तो व्हाट इज अ सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द टास्क? शी कैन क्रिएट अ ब्लॉग, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और मेल मर्ज. सो इस केस में वो ब्लॉग बना सकती है. ठीक है. ईमेल के थ्रू तो काम नहीं हो पाएगा बिकॉज वो सबको दिखाना चाह रही है. तो ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने इंफॉर्मेशन को जो है वो दूसरों से शेयर कर सकते हैं. लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी नया पोस्ट उसमें डाल सकते हैं. ठीक है. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप चैटिंग वगैरह कर सकते हैं और वीडियो ऑडियो सब सेंड कर सकते हैं लाइक व्हाट्सएप. और मेल मर्ज जो होता है वो ऐसी फीचर है जिसकी हेल्प से आप सेम मैसेज को बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ब्लॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं. सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल और फायरफॉक्स. तो नॉट अ वेब ब्राउजर जो है दैट इज गूगल बिकॉज गूगल एक सर्च इंजन है. सफारी एप्पल के कंप्यूटर्स और फोन्स में आपको मिलेगा. इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके विंडोज में होता है जिसका नेम अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया. एंड फायरफॉक्स भी हमारा एक ब्राउजर है बट गूगल इज अ सर्च इंजन. लेकिन अगर क्रोम आ जाए तो क्रोम हमारा वेब ब्राउजर है. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इनमें से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में होने चाहिए कम से कम 8 कैरेक्टर्स with a mixture of upper case and lower case letters and the numbers and the symbols. According to that इसमें सिर्फ नंबर है ये नहीं हो सकता, इसमें नंबर्स भी हैं, लेटर्स भी हैं, अपर केस लोअर केस भी हैं, सिंबल्स भी हैं. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, इसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं, सिंबल्स नहीं है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Fifth part says Bharat has set up his company with the 20 computers in a building. He wants to connect all the computers together. Which type of network will be the best suitable for this purpose? भरत ने अपनी बिल्डिंग में 20 कंप्यूटर्स को सेटअप किया और उसको कनेक्ट कराना है, तो कौन सा नेटवर्क बेस्ट है? तो जब भी एक बिल्डिंग के अंदर आपको कनेक्शन कराना हो, बेस्ट इज लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क. अगर आप एक रूम के अंदर करा रहे हैं जहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी हो, वहाँ पैन यूज कर सकते हो. एक सिटी के अंदर हो तो वहाँ पे हम मैन का यूज कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. लेकिन सिटी टू सिटी हो, कंट्रीज हो, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस हो, तो वहाँ पे हम सबसे बड़ा नेटवर्क यूज करते हैं विच इज वैन. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बिल्डिंग में पूछा गया है, तो वहां पे होगा लैन. ठीक है. आईपी स्टैंड्स फॉर डैश, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरपर्सनल प्रोटोकॉल. तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स विच आर रिक्वायर्ड ऑन द इंटरनेट एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है. तो वी हैव डिस्कस द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज वेल एज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. मूव ऑन करते हैं अपने सब्जेक्ट सेक्शन बी पे, दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. एंड यहाँ पे हमारे पास पहले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके हैं 2 मार्क्स के, और आपको इसमें करने हैं टोटल 5 में से 3 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच. सो 6 मार्क्स के आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे एंड दे आर टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन? ठीक है. ये यहाँ पे हमारे आंसर्स हैं. ठीक है. ये सारे एमसीक्यूज के आंसर्स हैं. अच्छा, एक इसमें आपका ये वाला भी मिस्टेक थी. यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, इसका आंसर आपका कंपेयरिंग आएगा यहाँ पे. हियर 3rd क्वेश्चन 5th पार्ट ऊपर देखते हैं एक बार. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट का आपका आंसर यहाँ पे नेम आएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. सी इज नेम. तो ये करेक्शंस आप ध्यान से देख लेंगे और कर लेंगे. बाकी आंसर्स इसके ठीक हैं. अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. यहाँ पे भी आपको बता रखा है कि कहाँ से है, कौन सी बुक में से है, कौन से चैप्टर में से है और कौन से पेज पे आंसर है. ठीक है. तो डायरेक्टली यू कैन रेफर टू दीज थिंग्स. नाउ वी आर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज What are the learning objectives of communication? कम्युनिकेशन से आप क्या सीखते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो कम्युनिकेशन करने का मतलब ओपिनियंस, फीडबैक, सजेशंस को शेयर करना. बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन के थ्रू हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स, जो हमारे कन्विंसिंग स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि दूसरा हमारी बात को समझ सके, उसे डेवलप कर सकते हैं. एंड अपनी बात को इफेक्टिवली हम प्रेजेंट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, दैट ऑल्सो वी कैन डू. ठीक है. सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डू वी से दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ऐसा बिजनेस पर्सन जो सोसाइटी के लिए वर्क कर रहा है. मेन मोटिव उसका प्रॉफिट नहीं है बट टू सर्व द सोसाइटी एंड ऑल्सो to add creative and innovative ideas in his business. ठीक है. तो why the entrepreneur should be open minded? ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए. बिकॉज अगर वो ओपन माइंडेड होगा तो ही और शी विल बी एबल टू गेट द अपॉर्चुनिटीज, और जो अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आ रही है, द पर्सन विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट, यूज दोज अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज. मतलब अगर कोई पर्सन ओपन माइंडेड है तो वो न्यू आइडियाज को वेलकम करेगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचेगा कि इसका मैं किस चीज में और यूज कर सकता हूँ, एंड हाउ वी कैन यूज इट टू फाइंड द सोल्यूशन टू द अदर प्रॉब्लम. एंड ओपन माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? दे आर एबल टू स्ट्रेटेजाइज बेटर. अच्छे से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं बिकॉज हर एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को या हर एक बिजनेस को या हर एक पार्ट को वो एक अलग एंगल से और मल्टीपल लेंसेज से देख पाते हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाई द एंटरप्रेन्योर शुड बी ओपन माइंडेड. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ इज सेल्फ रेगुलेशन कनेक्टेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली?
अब सेल्फ रेगुलेशन मीन्स वी शुड बी एबल टू रेगुलेट आवर इमोशंस, ओके, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अपना काम अकेले हम कर सकते हैं, इसमें सेल्फ रेगुलेशन कैसे हेल्प करती है। सी इफ वी आर अ सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन, तो हम इमोशंस में बह के या फीलिंग्स के थ्रू अपना काम नहीं करेंगे, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से अपने वर्क को करेंगे। सो द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी एनहेंस्ड, इंप्रूव हो सकती है इफ वी आर सेल्फ रेगुलेटेड। Basically, it guides the independent individuals. It helps them to consider the long-term consequences. अगर मान लीजिए बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो वहां पे सिर्फ हम उस सिचुएशन को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि उसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में क्या उसके कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, विल कंट्रोल आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड इट लीड्स टू अ रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर। हम खुद पे अपना कंट्रोल रखते हैं और अपने एफर्ट्स लगाते हैं सो दैट वी कैन रीच आवर गोल एंड विच इंक्लूड्स द डिसिप्लिन, जिससे हम कंसिस्टेंट रहते हैं और अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। सो दिस इज हाउ सेल्फ रेगुलेशन इज कनेक्टेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 9 says हाउ कैन वी प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक बाय वायरस। हम अपने कंप्यूटर को वायरस के अटैक से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ सबको पता है कि वी नीड टू हैव एन एंटीवायरस फॉर दिस, बट और हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल करा सकते हैं, फायरवॉल को इनेबल कर सकते हैं। बेटर होगा कि हम कोई भी बाहर से डिवाइस जो है वो यूज़ ना करें। जो हम कोई भी डिवाइस अगर यूज़ करना भी पड़ रहा है तो उसे हम यूज़ करने से पहले स्कैन कर लें। और कोई भी ईमेल जो हमें लगता है सस्पिशियस है, जो हमें लगता है कि अननोन है, हम नहीं जानते हैं उसको, तो उसे हम ओपन ना करें या केयरफुली उसको चेक करें। अगर कोई लिंक आया भी है तो उसको डायरेक्टली ओपन ना करके वहाँ से कॉपी करके और किसी वेब ब्राउज़र में जाके उसे पेस्ट करके चेकआउट करें। ठीक है, एंड इफ़ यू आर डाउनलोडिंग एनी अटैचमेंट और फाइल फ्रॉम द ईमेल और फ्रॉम एनी ऑफ द वेबसाइट, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि वो जो साइट्स हैं वो सिक्योर्ड रहें ताकि हमारे सिस्टम में वायरस जो है वो एंटर ना हो। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ग्रीन इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। ग्रीन इकोनॉमी मतलब जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कोई काम किया जा रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उसका जुडिशियस यूज करें, जो है उसका यूज करें ताकि वो हमारे लिए भी अवेलेबल हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। तो ग्रीन इकोनॉमी इस चीज को कैसे प्रमोट करती है। बेसिकली जो ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज का फोकस होता है वो ये इंश्योर करना होता है कि जो भी हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू हो, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज ना हो। जैसे कि बेसिकली प्रोवाइड कराना मेन चीज़ें क्लीन एयर, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, हमारे आसपास जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज हैं वो सब प्रोवाइड कराना, फूड प्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ प्रोवाइड कराना, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द ग्रीन ग्रोथ। तो अगर हमारी ग्रीन इकोनॉमी होगी, हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे बट एक तरीके से यूज़ करेंगे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम से कम यूज़ होंगे। सो दैट इज द आंसर। सो दीज वर द टोटल 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें से आपको कोई भी 3 करने हैं अटेम्प्ट, 2 मार्क्स ईच इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। अब आते हैं 2 marks questions and 4 marks questions from subject specific skills, and we are having total 6 questions of 2 marks, जिसमें से 4 करने हैं, और 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 3 करने हैं, वो आपके 4 मार्क्स ईच के। 2 मार्क्स वाले अगेन 20 to 30 वर्ड्स के हैं और 4 मार्क्स वाले 50 to 80 वर्ड्स के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंकरिंग इन अ वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो उसमें एंकरिंग का क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी इमेज है, तो हर इमेज के साथ एक एंकर पॉइंट होता है। जैसे कि ये मेरी इमेज है, तो ये जो आप साइन देख रहे हो ना, दिस इज अ साइन ऑफ एंकर। ठीक है, ये इमेज के लिए रेफरेंस पॉइंट है कि जैसे अभी ये यहाँ पे है तो मेरी इमेज यहाँ है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है इमेज के लिए कि जहाँ जहाँ ये एंकर पॉइंट मूव करेगा देयर द इमेज विल मूव। अब वो पेज भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो कोई इमेज या फ्रेम या पैराग्राफ भी हो सकता है। तो हर इमेज का अपना एक एंकर पॉइंट होता है, यानी कि वो रेफरेंस पॉइंट जो कि जिसके अराउंड, जिसके साथ साथ हमारा इमेज या ग्राफिक मूव करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट नोन एज एंकरिंग। ठीक है,
उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग इन अ स्प्रेडशीट। वेरी इजी। सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब होता है हम अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे अल्फाबेटिकल डेटा है तो A to Z में असेंडिंग ऑर्डर में होगा और डिसेंडिंग में Z to A में होगा। तो ताकि हम उसको एक पर्टिकुलर वे में देख पाए, जैसे कि हमारी शीट्स होती हैं सेक्शन वाइज, एक पर्टिकुलर क्लास की शीट्स है तो रोल नंबर की फॉर्म में डेटा अरेंज होता है। सो वहाँ पे एक ऑर्डर होता है, उस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज वे में देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स चेक करनी है पर्टिकुलर मंथ की तो उसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स के जो नेम्स हैं रोल नंबर वाइज हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट सॉर्टिंग मीन्स, अरेंजिंग द डेटा आइदर इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ मीनिंगफुल मैनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एनी 4 एटिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। जब भी आप इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं तो कुछ एटिकेट्स वी नीड टू फॉलो, तो आपको कोई भी इसमें 4 बताने हैं, 2 मार्क्स का है। सबसे पहले जो भी आप मैसेज करें दैट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। अगर आपका नेम स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो आप अपना नेम बता सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जब आप चैटिंग कर रहे हैं तो आस्क द अदर पर्सन इफ ही और शी हैज द टाइम और नॉट, एंड गिव द टाइम टू द अदर पर्सन टू रिप्लाई। और साथ में ऐसा भी होगी दूसरा पर्सन भी आपको टाइम दे रिप्लाई करने के लिए। एंड डू नॉट कीप ऑन गोइंग विद द चैट इफ द रेसिपिएंट इज बिजी। ठीक है। और इसमें आप और क्या बता सकते हैं, आपने नेम से इंट्रोड्यूस करना है, दूसरे पर्सन को भी टाइम देना है और खुद के लिए भी टाइम लेना है कि आई नीड टू गिव द रिप्लाई ऑफ दैट थिंग फर्स्ट। ठीक है। और कोई भी नेस्टी मैसेजेस या वल्गर मैसेजेस वी शुड नॉट सेंड व्हाइल वी आर चैटिंग ऑन द इंटरनेट। ठीक है। जहां जहां आपको लगता है कि इमोटिकॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जो स्मॉल इमेजेस होती हैं, इमोटिकॉन्स आते हैं, वहां पे आप वो यूज कर सकते हैं टू मेक योर मैसेज मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है। तो कोई भी 4 एटिकेट्स आप इसमें लिख सकते हैं। Now we move to question number 14. How is goal seek different from solver in a spreadsheet? अब गोल सीक और सॉल्वर ये दोनों स्प्रेडशीट की फीचर हैं, दोनों का काम एक ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। गोल सीक यानी कि हमें गोल पता है, यानी कि हमें आउटपुट पता है और हमें इनपुट निकालना है, लेकिन एक आउटपुट से एक ही इनपुट निकलेगा। लेकिन सॉल्वर में क्या होता है, आउटपुट पता है, इनपुट निकालना है, लेकिन बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है। अब गोल सीक के इसी में आप इसके उसको ले सकते हो, एग्जाम्पल को ले सकते हो। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गोल्स की डिटरमाइंस व्हाट वैल्यूज नीड टू बी इनपुट, यानी कि इनपुट निकालना है ताकि हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। ठीक है। और सॉल्वर क्या करता है, सॉल्व द इक्वेशन जो बहुत सारे सेवरल वेरिएबल्स का यूज करती है, यानी कि उसके पास आउटपुट तो एक है लेकिन इनपुट उसे बहुत सारे निकालने हैं, तो उसमें मल्टीपल इनपुट क्या आएगा उस पर्टिकुलर रिजल्ट से वो हमें निकालना है। अब गोल सी के एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो मुझे ये पता है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट इतना चाहिए, प्रिंसिपल है, टाइम है, मुझे रेट नहीं पता, तो उस केस में रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट से रेट निकाला, दैट इज गोल सीक। और सॉल्वर में हम क्या ले सकते हैं, जैसे 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं और मुझे परसेंटेज 75 चाहिए और 6 में से 4 सब्जेक्ट्स के मेरे पास मार्क्स तो हैं लेकिन 2 के नहीं है और मुझे उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज चाहिए, दैट इज 75। और 2 पे भी मैंने कंडीशन लगाई कि इतने से ज्यादा चाहिए और इतने से कम चाहिए, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो सॉल्वर। ठीक है। तो गोल सीक और सॉल्वर काम एक ही हो रहा है, आउटपुट से इनपुट, लेकिन गोल सीक में एक इनपुट निकल रहा है और सॉल्वर में ज्यादा इनपुट निकल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक है। प्राइमरी की हमारे टेबल का वो कॉलम जिसके अंदर सारी वैल्यूज यूनिक होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती, एंड इट कांट बी लेफ्ट ब्लैंक। और फॉरेन की होता है हमारे चाइल्ड टेबल का वो कॉलम जिसमें हमारी वैल्यूज जो है वो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की से आती है। मतलब जैसे मान लीजिए एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, अब एक क्लास में अगर हमने फील्ड्स दिए रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, तो नेम, क्लास और सेक्शन तो सेम भी हो सकते हैं लेकिन जो रोल नंबर है सबका अलग होगा, तो रोल नंबर प्राइमरी की बन सकती है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एक से ज्यादा बच्चों का सेम रोल नंबर हो, या ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका रोल नंबर ही ना हो। ठीक है। तो फॉरेन की क्या होती है, जैसे मान लो एक टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल है टीचर। स्टूडेंट टेबल में जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है और टीचर टेबल में जो रोल नंबर है वो फॉरेन की मानी जाएगी, क्योंकि इस रोल नंबर में वैल्यू कहाँ से आ रही है, इसी टेबल के रोल नंबर से आ रही है। ठीक है। प्राइमरी की में सारी वैल्यूज यूनिक रहेंगी, फॉरेन की में डुप्लीकेट हो सकती हैं। एक टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है लेकिन फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है।
ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की. They have also provided the book in which the answer is there, unit number, session number, page number, so that you can refer to that in case you find any problem in any of the answers. ठीक है. Next question is question number 16. What is the importance of healthy lifestyle? Given 4 points related to it. तो basically healthy lifestyle हमारा क्या होता है? To have a healthy body, we need to have a healthy lifestyle. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा? So healthy lifestyle की वजह से वी आर एबल टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड वेलबींग. हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हो सकता है? वी शुड हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बैलेंस मील लेनी चाहिए. वी शुड अवॉइड जंक फूड. वी शुड डू फिजिकल एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज और योगा, वॉक और मेडिटेशन. वी शुड ऑप्ट फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक गोइंग फॉर अ वेकेशंस और डूइंग योगा, मेडिटेशन, मतलब हैंडलिंग इट इन अ पॉजिटिव मैनर. And then we should have the sound sleep, यानी कि we should take proper sleep of 8 hours in order to feel relaxed. So these are some of the points related to this one. Now we have the questions of 4 marks from the subject specific skills. Out of 5 you have to attempt any 3. So question number 17 says, what do you understand by the term table of contents? List the characteristics of a good table of content in a word processor. So table of content basically what it is, index ही होता है. जैसे आपकी बुक में इंडेक्स होता है जिसके अंदर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड पेज नंबर्स होते हैं, जिससे कि आपको अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है. आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को चेक कर सकते हैं. एक मैप की तरह वो काम करता है. ठीक है. बट एक चीज इसमें है कि जब तक आप, मान लीजिए आपने टेबल ऑफ कंटेंट में आपने अपने डेटा के अंदर अपडेशन कर दी, लेकिन उसको टेबल ऑफ कंटेंट में शो करने के लिए आपको अपडेट ऑप्शन को लेना पड़ेगा. इट डजंट ऑटोमेटिकली अपडेट इटसेल्फ. तो एक अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट के फीचर्स क्या होंगे? इट शुड बी इजी टू रीड एंड सिंपल टू यूज होना चाहिए. अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज और फॉर्मेटेड होना चाहिए. बैकग्राउंड कलर्स देना चाहें तो दे सकते हैं, या अगर आप उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के जो फॉन्ट हैं उसको अलग अलग दिखाना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, दैट फॉर्मेटिंग यू कैन डू. इट शुड बी एक्यूरेट. जैसे कंटेंट है वैसे उसका पेज नंबर हो, एक्यूरेट हो, इजीली एक्सेसिबल हो, एंड इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड द कॉपीराइट पेज. बेसिकली आपने देखा होगा कि इंडेक्स कहाँ होता है? जो हमारी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, कवर पेज जो होता है, उसके जस्ट बाद आपका इंडेक्स आ जाता है, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द पर्टिकुलर चैप्टर और द पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. So this is about the topic. Next is question number 18. Explain the term scenarios in relation to spreadsheet with example. Scenario क्या है? It is a feature. अब जब भी scenario या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए from the electronic spreadsheet, एक चीज आप इसमें हमेशा मेंशन करिए, मेन्यू. ठीक है. इट गिव्स यू द प्लस पॉइंट कि आपके पास डेटा है उसमें लिखने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, इसके अंदर जो आपका सिनेरियोस का टॉपिक है, मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है उसमें जो सिनेरियोज हैं वो आपके जो बाकी के सारे फीचर्स हैं वो या तो डेटा मेन्यू में है या आपके टूल्स मेन्यू में है. तो ये सिनेरियोज आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज इन द टूल्स मेन्यू. तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो. पहले तो आप बताओ कि सिनेरियो है क्या. इट इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस, यानी कि हमें ये पता है कि व्हाट इज माय इनपुट एंड आई हैव टू टेल व्हाट शुड बी माय आउटपुट. ठीक है. हर सिनेरियो का अपना एक नेम दे सकते हैं और हर सिनेरियो में हम चेंजेस कर सकते हैं. एक इनपुट में चेंज करके क्या आउटपुट बनेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बॉर्डर का कलर दे सकते हो. आप सिनेरियो जितने भी बनाए, लेकिन एक टाइम पे जो एक्टिव होगा प्रिंट आपका वही होता है. ठीक है. तो एक तरह से हमने वैल्यूज को सेव कर दिया फॉर द कैलकुलेशन. कभी भी आप एक सिनेरियो से दूसरे पे जाना चाहें तो आप नेविगेटर या ड्रॉप डाउन की हेल्प से जा सकते हैं. अब इसने पूछा था एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम है और सिंपल इंटरेस्ट है. ठीक है. आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया. मान लीजिए अब आपने वहां पे प्रिंसिपल को चेंज किया तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी चेंज, या आपने रेट को या टाइम को किसी एक को भी चेंज किया तो आपका वहां पे आउटपुट चेंज होगा. तो दिस एग्जाम्पल यू कैन गिव कि whenever we change the input values in order to calculate the simple interest out of principal or rate or time, our output will also change. ठीक है. So this is how we can make use of the scenarios. Now we have question number 19. Explain different kinds of online threats. ऑनलाइन थ्रेड्स की बात करें तो ऑनलाइन थ्रेड्स मतलब कि देखो, इंटरनेट की देयर आर सम एडवांटेजेस ऑल्सो, डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. तो इंटरनेट के फायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं इट इज़ अफेक्टिंग अस इट इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वहाँ पे फिशिंग अटैक हो जाता है। नॉर्मल फिशिंग क्या होती है, एक ट्रैप होता है जिसमें फिशेस जो है वो आ जाती है। तो इंटरनेट पे जो फिशिंग होती है वो उससे रिलेटेड ही है। क्या हुआ कि आपके लिए एक ट्रैप बिछा दिया गया कि आपको कुछ ऐसा मेल भेजा गया या कुछ भी चैट भेजी गई कि आपको ये डिटेल्स देनी है और आपके पास ये डिस्काउंट या रिवॉर्ड्स आ जाएंगे। तो आपको लगा कि इट इज़ गुड, यू गेव ऑल योर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बैंक, एंड व्हाट हैपेंस इज दे कैरी आउट द ट्रांजेक्शन एंड विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, ट्रैप बिछाया जा रहा है। देखने में लग रहा है कि इट इज गुड फॉर अस, बट एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन देने पे इट इज गेट टेकिंग ऑल आर इन्फॉर्मेशन, स्टील कर रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड थ्रेट हो सकती है, यहाँ थ्रेट आएगा मालवेयर। मालवेयर होता है कोई भी बैड सॉफ्टवेयर, जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, जो हमारे सिस्टम को हैंग कर देता है। और कुछ भी जो आप किसी भी लिंक पे या अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं तो वहां से हमारे सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है वो डाउनलोड हो जाता है। तो दैट इज व्हाट मालवेयर, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है। और क्या होता है, पासवर्ड अटैक हो सकते हैं। मान लीजिए आपके सिस्टम को अगर किसी ने हैक कर लिया, तो पासवर्ड आपके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के सेव्ड होते हैं हमारे अपने पर्सनल पीसी पे, और वो अगर हैक कर लिया तो आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी टेकन, और वहां से इंफॉर्मेशन की सीलिंग के साथ साथ अकाउंट में से आपका मनी भी विड्रॉ किया जा सकता है। दैट इज ऑल अबाउट द पासवर्ड अटैक्स। एक होता है इसमें ईमेल स्पूफिंग, यानी कि ईमेल पे, मेल पे आपको कुछ ऐसे लिंक्स भेजे गए या मैसेज भेजे गए कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड, यू विल बी एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई लिंक आया और आपका कोई बैंक है, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया आपको लगा कि आपका जो ओरिजिनल बैंक है उसके जैसे दिखने वाली वेबसाइट है। आपको वहां पे, हमें पता नहीं लगता कि एक्चुअल में इट इज अ फेक वेबसाइट, एंड जब हमें पता नहीं लगता वी गिव द इंफॉर्मेशन एंड दैट लीड्स टू स्टीलिंग ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली द मनी फ्रॉम आर अकाउंट। तो ये चैट की फॉर्म में भी हो सकता है, ईमेल की फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि आपके ईमेल के कंटेंट में या आपका जो हेडर है उसमें कुछ ऐसा मैसेज डाल दिया जाए कि लगेगा ये एक्चुअल सोर्स से आया है लेकिन होता वो कहीं और से है। सो दीज आर सम ऑफ द साइबर थ्रेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 is explain the term referential integrity, why it is important in the database. So referential integrity is basically the set of rules in the database management system जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि एक्सीडेंटली हमारे डेटाबेस में कोई भी डेटा को इंसर्ट ना करे, डिलीट ना करे या उसमें कोई भी चेंजेस ना करे। ठीक है, तो ऐसे रूल्स को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एंड ये जो कंसेप्ट है ये डेटाबेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन डेटाबेस, तो इसमें आपने इसके पर्पस लिखने हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हमारे पास दो टेबल्स होती हैं, एक होती है हमारी पेरेंट टेबल और एक होती है हमारी चाइल्ड टेबल। ठीक है, तो जो पेरेंट टेबल है उसमें आपकी प्राइमरी की होगी एक, ठीक है, और वही प्राइमरी की का जो नेम है वो एज अ फॉरेन की होगी हमारी चाइल्ड टेबल में। ये दोनों टेबल्स हमारी आपस में लिंक्ड हैं। तो मान लीजिए इसमें मैंने रोल नंबर में वैल्यूज ली हैं 101, 102 एंड 103, तो आई कैन नॉट एंटर एनी सच वैल्यू इन माई चाइल्ड टेबल जो मेरी प्राइमरी टेबल के प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि मेरी जो मेन पेरेंट टेबल है उसमें अगर रोल नंबर में 101, 2 एंड 3 वैल्यूज हैं तो मैं सिर्फ वही फॉरेन की में ऐड कर सकती हूँ, उसके अलावा कोई और नहीं एंटर कर सकती। ठीक है, तो इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल इन द चाइल्ड टेबल अगर उससे मैचिंग रिकॉर्ड पेरेंट टेबल में नहीं है तो, और चेंजेस और डिलीशन आप पेरेंट टेबल में नहीं कर सकते। जैसे मान लो 101 वाला रिकॉर्ड मेरा इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं 101 को चेंज करके कुछ और नहीं कर सकती, लाइक आई कैन नॉट डू इट 104। या फिर अगर दोनों में है और मैं इसको पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहूँ, दैट ऑल्सो आई कैन नॉट डू। ठीक है, तो चेंजेस और डिलीशन आप पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में नहीं कर सकते और इंसर्शन आप चाइल्ड टेबल की फॉरेन की में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द डुप्लीकेट डेटा, दिस इज इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 विच इज बेस्ड ऑन द एसक्यूएल क्वेरी। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है डेटा शीट विच हैज द 4 फील्ड्स, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्जाम एंड डेज। अब इसमें जो 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं सब में देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन है डिस्प्ले से रिलेटेड। तो डिस्प्ले जो होता है वो होता है हमारा सेलेक्ट कमांड से। राइट द एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ऑफ एग्जाम। डिस्प्ले कराना मतलब विच कमांड वी विल यूज द सेलेक्ट कमांड। एंड सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं तो विल यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम विच इज डेट।
डेट शीट, ठीक है। एंड असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो इसके लिए हमारे पास सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एक क्लॉज होता है ऑर्डर बाय। किसके अकॉर्डिंग करना है? डेट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग, विच इज द नेम ऑफ माई कॉलम. So the answer of this question will be select star from date sheet, order by date of exam. Last में we can put a semicolon also like this. Second part है इसका, write a query to display the above date sheet. पूरी की पूरी टेबल डिस्प्ले करानी है तो select star from date sheet, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है इसमें, display the subject name and date of exam held on Monday. दो चीज़ें चाहिए, subject name and date of exam चाहिए, तो select subject name comma date of exam फ्रॉम डेट शीट. टेबल का नेम इज डेट शीट एंड मंडे जो है वो कौन से कॉलम में है? डेज नाम के कॉलम में, वेयर डेज इक्वल्स टू मंडे. सो दिस इज द आंसर. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेज कि सेलेक्ट डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम एंड द डेट ऑफ एग्जाम ऑफ द साइंस सब्जेक्ट. तो डेट ऑफ एग्जाम का कॉलम का नाम डेट ऑफ एग्जाम है, सब्जेक्ट नेम का सब्जेक्ट नेम है, और सब्जेक्ट साइंस जो है वो सब्जेक्ट नेम में है, तो दैट इज द कंडीशन. कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज. तो हमने कहा सेलेक्ट सब्जेक्ट नेम कॉमा डेट ऑफ एग्जाम फ्रॉम डेट शीट वेयर सब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू साइंस. कोई भी ऐसा डेटा जो आपका अल्फा न्यूमेरिक हो या फिर अल्फाबेटिकल हो, नंबर्स और अल्फाबेट्स हो उसमें या सिर्फ अल्फाबेट्स हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उसे कोट्स में पुट कर देंगे, ठीक है. सो दिस इज हाउ दीज क्वेरीज हैव टू बी रिटन. बाकी के जो नीचे क्वेश्चंस होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं, शॉर्ट नोट्स ऑन द गिवन 4 पार्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स. सो इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द सैम्पल पेपर फॉर दिस सेशन एंड किस तरह से इसकी मार्किंग है. बेसिकली जो हमारी लास्ट ईयर वाली मार्किंग थी उसी की तरह है ये, ठीक है. और अब आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ द पैटर्न ऑफ द पेपर विल बी देयर एंड हाउ द क्वेश्चंस विल कम. बेसिकली इसमें जो स्टेप वाले आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, दैट वुड बी मच बेटर. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आपने वो चीज़ प्रैक्टिकली की हुई है और अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. बट अगर हम सीबीएसई के सैम्पल पेपर को देखें तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम है जिसमें स्टेप्स आए हो, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर. बाकी आप थोरोली चैप्टर को रीड करें कि बीच में से बेसिकली पार्ट ए में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू आर एबल टू आंसर इट, ठीक है. So with this we have completed the discussion of the sample paper students. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section. अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए I'll provide the link in the description box. आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं. All the practicals number wise are given in the link in the playlist of IT402 practical file. ठीक है. So with this we completed this video and I'll meet you in my next video. If you find this video helpful, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. Till then, have a good day and thank you so much.